Hello Standard 10th. Next topic from chapter number 1. It is Fairs of Gujarat. Varied culture of Gujarat is seen in many places and thus फेयर्स जिनका ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंस है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, सोशल इम्पोर्टेंस है, ऐसे कई सारे मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अलग अलग जगह पर। कुछ इम्पोर्टेंट फेयर्स जो है दे मोढेरा फेयर। इट इज सेलिब्रेटेड इन 3rd week of January at Modera in Mehsana. Bauchraji fair. It is celebrated on Chaitra Sud Poonam at Bauchraji in Mehsana. Shamlaji fair. It is celebrated from Kartik Sud Agyaras to Poonam at Shamlaji, that is in Aravalli. Bhadarvi Poonam fair. It is celebrated on Bhadarvi Poonam at Ambaji in Banaskantha district. Bhavnath Mahadev fair. It is celebrated from Maghat 9 to 11 at Girnar in Junagadh. Tarnetar fair, one of the very renowned fair of Gujarat. It is celebrated in the 1st week of Bhadrapad at Tarnetar in Surendranagar district. Bhadiyat fair. It is celebrated on 9th, 10th and 11th of the Rajab month. Now this Rajab month we have not heard it before. This particular month is the 7th month of Islamic calendar and this month is considered very auspicious by them and it is one of that 4 month जिसमें वो लोग battles नहीं करते हैं. And it is celebrated at Bhadiyat in Ahmedabad. Naklang fair. It is celebrated on Bhadarvu Vad Aso and at Kolyak in Bhavnagar. Madhavpur fair. It is celebrated from Chaitra Sud Navami to Teras at Madhavpur in Porbandar district. Vautha fair. It is celebrated on Kartik Sud Poonam at Dholka in Ahmedabad. Meera Datar fair. It is celebrated from 16th to 22nd in Rajab month at Unnava in Mehsana. Dang Darbar fair. It is celebrated on Fagun Sud Poonam at Avwa in Dang district. Golgadhera fair. It is celebrated 5 to 7 days after Holi at Garda in Dahod. Kartik Purnima fair, obviously celebrated on Kartik Sud Poonam at Somnath in Gir district. Bhanguria fair. It is celebrated from Holi to Rang Panchami at Quant in Chota Udaipur. So this is a gist of the fairs that we have studied in the table form. Next topic, India, land and people. Primitive men इंडिया में और ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे थे. हमारी हेरिटेज की प्रॉस्पेरिटी और वैरायटी को देखकर बहुत सारी फॉरेन ट्राइब्स इंडिया में आई एंड इनके जो रिमेन्स है ऑफ ऑल दिस ट्राइब्स आर फाउंड हियर. व्हिच वर दोस ट्राइब्स? उसमें से द्राविडियंस, दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट ट्राइब, बट many of the modern researchers, according to the linguistic basis, means language ke accordingly, they have proved that even before the Dravidian, 6 more tribes came and settled in India. So let's explore about them. Negritoid. कुछ historians ऐसा मानते हैं कि Negro, Negritoids, they are the most ancient inhabitants of India. They came from Africa via Balochistan to India. Physical features में they have black skin, height of 4 to 5 feet and curly hair like this. Australoids. These people came from Southeast Asia. Their physical features were black skin, broad head, flat nose and short at height. आर्यंस जो कि बाद में आए थे वो इनको निषद पीपल बोलते थे. इनके जो ओरिजिन है कोल, मुडा, खासी ट्राइब के, आसाम, निकोबार और म्यांमार के, इनमें ऑस्ट्रेलॉइड्स की जैसी सिमिलैरिटीज देखी जाती है.
इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा है। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, कॉटन कपड़े पहनते थे और बहुत सारी स्किल्स इनको इनके अलावा आती थी। एंड दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स ऑल्सो। द्राविडियंस, ओरिजिनली द्राविडियंस इंडिया से ही बिलोंग करते थे। दे वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन एंड क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो। ट्राइब जो नॉर्थ से आई, उन्होंने अपनी लैंग्वेज के साथ में सरवाइव किया, कल्चरल फीचर के साथ में सरवाइव किया एंड लेटर उन्हीं को ही द्राविडियंस कहा गया। द्राविडियंस ने हमको कॉन्सेप्ट दिया ऑफ मदर एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड, और इसीलिए पार्वती और शिव का जो कंसेप्ट है एज मदर एंड फादर ये डेवलप हुआ है, तो ये इन्हीं की देन है। इसके अलावा जो नेचर को पूजने का हमारा ट्रेडिशन है, दैट इज ऑल्सो द गिफ्ट ऑफ द्राविडियंस। धूप दीप आरती हम करते हैं, दैट इज ऑल गिवन बाय द्राविडियंस। एंड नेचर एनिमल वर्शिपिंग, ये इनका एक बहुत ही ग्रेट फीचर है। ओरिजिनल डेटीज जो थे द्राविडियंस के, उनको आर्यंस ने एज अ गॉड ऑफ कल्चर एक्सेप्ट किया है एंड समय के साथ में उसको वापस री एस्टैब्लिश भी किया है। अंडर द ट्रेमेंडियस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, आर्यन कल्चर जो है वो द्राविडियंस के साथ में एकदम इंटरनलाइज्ड हो गया था एंड दैट इज व्हाई इंटरकास्ट मैरिजेस स्टार्टेड। Dravidians had matriarchal system of family, that means they use mother name as family name। जैसे हम patriarchal में पापा का जो सरनेम होता है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, matriarchal में they follow mother's name। द्राविडियंस ने बहुत सारा प्रोग्रेस किया इन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑल्सो, लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट, वीविंग एंड स्पिनिंग, डाइंग, ये सारी चीज़ें इन्होंने सीखी है। और आर्यंस का क्योंकि डोमिनेशन रहा नॉर्थ में, इसीलिए लोग साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए और वहीं सेटल हो गए। और इसलिए आज भी हम देखते हैं कि जो द्राविडियन फैमिली लैंग्वेज है, दैट इज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारे बोलते हुए लोग साउथ इंडियन में पाए जाते हैं। नीग्रोइड्स, द्राविडियंस, इनके अलावा मोंगलॉइड, एल्पाइन, दिनार्क, आर्मेनॉइड्स, ये सारी भी ट्राइब्स थी जो इंडिया में आई थी। जिसमें मोंगलॉइड, दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत और सेटल डाउन हो गए इन नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल, दीज ऑल नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स। एंड ये धीरे धीरे इंडियनाइज हो गए, यानी कि इंडिया के नागरिक बनते गए। मोंगोलॉइड्स में जो फिजिकल फीचर्स है, दैट वाज येलो कॉम्प्लेक्शन, फ्लैट फेस, दे हैड चबी चिक्स, आलमंड शेप आईज, एंड इनका येलो कॉम्प्लेक्शन होने की वजह से मोंगोलॉइड्स वे नोन एज किरट पीपल। सो इसमें जो चीज़ें याद रखनी है, दैट इज कि फेयर्स कहाँ सेलिब्रेट होते हैं, कब सेलिब्रेट होते हैं, एंड द फीचर्स ऑफ निग्रिटोइड्स, ऑस्ट्रेलॉइड्स, द्राविडियंस एंड मोंगोलॉइड। थैंक यू।